Ladies and gentlemen, good evening. It's Good Friday today, but certainly not a good Friday for the Aam Aadmi Party. A rebellion brewing within the party is now a full-blown public war, and at the center of it, Arvind Kejriwal's blue-eyed boy, Raghav Chaddha. A day after the Aam Aadmi Party removed him from the post of the Rajya Sabha deputy leader and asked the chair not to give him time to speak under the party's quota, Raghav, this morning, launched a video attack on the party and ended it with a threat. Take a look. लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। And that, ladies and gentlemen, triggered a counter-attack from the Aam Aadmi Party. The party accused Raghav of using the Rajya Sabha seat to do soft PR for himself instead of working for the party. They accused him of raising issues like samosa prices as airports, but ones that impacted the party, he didn't speak about. Then they pointed out that when the party chief Arvind Kejriwal was arrested, Raghav hid in London and didn't open his mouth. They essentially said Raghav is scared of Prime Minister Modi and is possibly headed to the saffron camp. हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। साफ हो गया है कि राघव जी बीजेपी से डर गए हैं। देखिए, बीजेपी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है। वो नेताओं को डराती है, धमकाती है, लालच देती है, और विपक्ष के बहुत सारे नेता या तो डर और धमकी से या लालच से कूदकर बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। शायद राघव जी के साथ भी यही हो रहा है। Now the big question is, will Raghav Chaddha leave the Aam Aadmi Party and join the BJP? Well, at 33, Raghav Chaddha became the youngest MP to walk into the House of Elders. This happened in 2022, which means he still has 2 years for his term to expire. If he quits the party, will he have to leave his seat? Not necessarily. But like Swati Maliwal, he can always continue to attack the Aam Aadmi Party in Parliament despite being an Aam Aadmi Party MP. The question also is, will he take the risk, put in his papers and join the BJP ahead of the Punjab elections next year? Well, the BJP is certainly batting for him today. जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा है कि राघव चड्ढा को बोलने का समय नहीं देना चाहिए, ये अलोकतांत्रिक है। अरविंद केजरीवाल कमजोर और डरे हुए लोग हैं, उन्हें विपक्ष पसंद नहीं है। वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है, तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। My guest this evening for a quick chat, Neoma Gupta, spokesperson of the BJP. Hi, Neoma. Good evening. Sanjeev Kaushik is a political analyst, used to be with the Aam Aadmi Party. Sanjeev ji, good evening. Welcome back to the show. And Parvinder Singh Sethi is a political analyst who will be speaking on behalf of the Aam Aadmi Party. Why? Because the Aam Aadmi Party was sent an invite to be on the show. They declined. They don't want to speak on the issue, which is very odd. Parvinder ji, नमस्कार। क्यों साइलेंस कर दिया भाई आपने राघव चड्ढा को? आज तो वो खुल के बरस रहे हैं आप पे। नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हाँ। और जब वो पार्टी के अंदर सैक्रिफाइस करने का समय आता है, हाँ। जब पार्टी के चीफ, पार्टी के संयोजक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, हाँ। को अरेस्ट किया जाता है, तो ये लंदन भाग जाते हैं। हाँ। ये बीजेपी
बीजेपी के आगे हाथ पैर जोड़ के कि मुझे अरेस्ट मत करो, जब आम आदमी पार्टी की सारी जो बड़ी लीडरशिप है उसको उठा के जेल में डाला जा रहा था, तो इन्होंने आपस में साठगांठ करी या अपनी डील करी। देखिए, मैं बताऊं, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर हमला होता है, वोट काटे जाते हैं और बीजेपी के वोट बनाए जाते हैं। टीएमसी इंपीचमेंट का मोशन लेके आती है, उस पर साइन करने के लिए राघव चड्ढा मना कर देते हैं। जब इसके ऊपर विपक्ष वॉकआउट करने की बात करता है तो ये वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। जो आदमी पार्टी का बागी हो जाता है तो उस व्यक्ति की या तो इंटरनली डील हो चुकी होती है भारतीय जनता पार्टी से, या वो अपॉर्चुनिस्ट है, जो बहुत ही डेलिकेट और चॉकलेट बॉय है, जो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए सिर्फ वो पावर को जो है एंजॉय करना चाहते हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी में रहने लायक नहीं है। ये सबने देखा है, पूरा देश जान रहा है इस बात को और समझ रहा है। आप इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं और आपको भी पता है कि जब मौका था, जब सब लोगों ने सैक्रिफाइस करा, जेल गए, तो ये लोग लंदन भाग गए। इन्होंने कहा मेरी आंख का ऑपरेशन है, इनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले। तो जो आदमी अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो पार्टी के या देश के या समाज के मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने कहा चलो आप जेल नहीं जाते, कोई बात नहीं, हम इस बात को अवॉइड तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग, परविंदर जी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अरे रुक भी जाइए परविंदर जी, रुक जाइए, इंडियन रेलवेज नहीं है, ट्रेन को कहीं रुकना होगा। नहीं तो ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। आप मुझको बोल रहे हैं न्योमा गुप्ता यू कैन कम इन हियर, आप इसेंशियली मुझको बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा जिनकी शादी हुई परिणीति चोपड़ा से और पूरा टॉप ब्रास जो है आम आदमी पार्टी का पहुंचा उनकी शादी में राजस्थान, आप कह रहे हैं दरअसल उनको भी अरेस्ट होना था लिकर स्कैम में, अलेज्ड लिकर स्कैम में। अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि कोई स्कैम ही नहीं था, कि अलेज्ड लिकर स्कैम में उनको भी अरेस्ट होना था, लेकिन उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ कर ली, इसलिए जो है वो बागी बन गए। राइट, दिस इज द एलिगेशन यू आर मेकिंग। न्योमा गुप्ता? Yeah, good evening, Shreya. Hope all well. So technically, Parvinder sir is technically saying that the scam was actually real, because if somebody's made a deal with the BJP and got out, means the scam was real. So all the court proceedings which have happened right now are hogwash. So there's so much. Sorry, sir. Shreya, tell him not to. Parvinder ji, wo Neoma ka interpretation hai. That is Neoma's interpretation. She has a right to her interpretation. It's not a matter of opinion. It's matter for what is following, and there's so much actually to unpack here. अच्छा परविंदर जी रुक जाइए, यू डोंट नीड टू करेक्ट इट्स हर इंटरप्रिटेशन। वो कुछ बोलेंगी, आप कुछ बोलोगे, तभी तो बहस होगी ना, नहीं तो if everyone agrees with each other तो क्या बहस होगी? Yeah, just have basic debating courtesy. It's nice to see that. And as I was saying, there's so much to unpack here, Shreya, because there's such an irony in the eye that a party that claimed to be born from literally revolution, internal democracy, has decided that its own MP cannot speak in parliament just because they don't like the way he's speaking, what he's speaking, or because of their internal disagreement. I mean, the rift between Mr. Raghav Chadha and the party has come to surface with something very evident, that the Aam Aadmi Party is actually exhibiting what many in the political space call a decline phase trait. I don't know if Parvinder sir is aware of it. That means when a party rises, they accommodate the leaders and sort out issues without things coming to a head. But when a party is falling, anyone with a slightly different view or not exhibiting subservience is purged. Your party actually started out against the politics of high command, and it was one of the key differentiators to Congress, and they claimed that what they had. But today it functions exactly like a top-down one-leader unit, where even a top office bearer like Raghav Chadha can be simply muted and turned into irrelevance overnight. I mean, you're talking about him being, ushered out for no reason. Arvind Kejriwal is actually a very shrewd man, we have to admit. Now, look, when he wants to keep people close, he keeps them. When he wants to discard it, look what happened when it came to the case of Mr. Anna Hazare, Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, Ashutosh, and recently Swati Maliwal. It seems to be a pattern. And the most important thing is, of
human nature. The minute you see a person coming into more relevance, into more political limelight, you try and take it away. Mr. Kejriwal has never been good with sharing power. We saw that when he was arrested in the excise scam, how difficult it was for him to resign eventually, and that whole drama of Miss Atishi doing that empty chair. In fact, I remember debating on your forum at that. I mean, this is just basic theatrics. This is what AAP is. It's a one-man unit, so top-heavy down that nothing exists without Mr. Kejriwal. Mark my words, we will see a lot more of this in the future. People will be shunted out unceremoniously, all because they didn't agree with Mr. Kejriwal. Neoma, yes, but yeah. that is how parties operate. Now, Yeah. if you have someone, 8 minutes, if you have someone in the BJP who doesn't agree with the Prime Minister, who Right. publicly takes a stand that is against the BJP stand, who publicly will defy a whip, who will publicly, march on an agenda and a drumbeat of his own and completely ignore what the party is saying or doing, then obviously the party will sideline him. Even the BJP would have done the same thing with Okay, Raghav Chadha had he been doing all of this in the BJP. Okay, first of all, you supported him, you encouraged him, you created a phoenix like Mr. Chadha. Today, if you're saying there are internal conflicts and you've thrown him out, you're publicly bashing him. It just shows the tenor of the party. And this Mr. Parvin was saying that Raghav didn't criticize BJP enough. There's some internal thing. I've heard his debates in parliament, and I think he's criticized the government repeatedly, and he's gaining a lot of popularity in his social media for this. So I don't think criticism is actually a main part. It is pretty obvious that him being removed was because Raghav Chadha was emerging as another big name within the Aam Aadmi Party. One might say, yeah. परविंदर जी जरा न्योमा गुप्ता के सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रही हैं कि एक्चुअली उनको इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो पार्टी से अलग अपने ही मुद्दे लेके बैठ जाते थे और वो मोदी जी पे सॉफ्ट हैं और अपना सॉफ्ट पीआर करने में लगे रहते थे। प्रॉब्लम ये है अकॉर्डिंग टू न्योमा गुप्ता दैट Raghav Chadha was building a personality and an aura for himself which could at some point surpass Arvind Kejriwal, and Arvind Kejriwal didn't like that. नहीं देखिए, अभी न्योमा जी तो मेरे को लग रहा है कि राघव चड्ढा जी की स्पोक्स पर्सन बन गई हैं। उनको पूरी तरह से वो कर रही हैं जिस प्रकार से। देखिए, अगर आप किसी पार्टी के अंदर हैं और आप पार्टी के किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे, पार्टी के जब पूरी पार्टी संकट के अंदर थी, पार्टी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो इन्होंने एक आवाज नहीं निकाली क्योंकि ये भी अरेस्ट हो सकते थे, क्योंकि सारी लीडर्स झूठे केसों में फंसाया जा रहा था। अब तो ये क्लियर हो गया, कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई केस था ही नहीं, केस बनता ही नहीं और केस डिसमिस हो गया। इस बात का बड़ा झटका पूरे देश के अंदर लोगों को पता लगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक कारणों से किस तरह से सारी चीजों को, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनका मिसयूज करती है। इस चीज को सारे देश ने देखा है। राघव चड्ढा उस समय बचे कि भी मैं जेल नहीं जा सकता, मुझे तो पावर चाहिए, और वो चुपचाप लंदन चले गए। उसके बाद भी उन्होंने किसी भी पार्टी के डिसीजन में साथ नहीं दिया। जब आप पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं चलेंगे, पार्टी के हिसाब से नहीं चलेंगे, बात क्रिटिसिज्म की नहीं है, बात किसी को विपक्ष को कोसने की बात नहीं है। लेकिन आप अगर पार्टी के इश्यूज के ऊपर ही स्टैंड नहीं करते और आप जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे दूर चले गए। पार्टी ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाया, पंजाब के अंदर उनको पूरी पावर्स दी, पूरी पावर्स को उन्होंने एंजॉय करा। उसके बाद जब संकट आया तो वो भाग गए। संजीव जी, परविंदर जी गलत तो नहीं बोल रहे? और इंटरनल समझ गए, ठीक है। संजीव जी, परमिंदर जी गलत तो नहीं बोल रहे? एट 33 द आम आदमी पार्टी मेड राघव चड्ढा द यंगेस्ट राज्यसभा एमपी इन दिस कंट्री। उसके बाद ये सिला। देखिए, सच बात यह है कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी हुई ऐसी पार्टी थी, उसका हश्र इतना जल्दी और अन्य राजनीतिक दलों के जैसे होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है और मैं अंदर जाकर के मैंने देखा है और महसूस किया है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के बरक्स कोई भी चेहरा यदि मजबूत होता हुआ दिखेगा उसका पर्चा कर दिया जाएगा। और ये अरविंद केजरीवाल ने कहीं और से नहीं सिखाया, भारतीय जनता पार्टी से ही सिखाया। उन्होंने पार्टी को, पूरी पार्टी को अपने हाथ में, अपने कब्जे में कैसे रखा जाए और कैसे चलाया जाए अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल यह है कि राघव चड्ढा यदि सदन में थे, उच्च सदन में थे,
तो वो जो सवाल उठा रहे थे उस सवाल से किसी को ना इत्तेफाकी है क्या? वो किसकी बात कर रहे थे? वो आम आदमी के रोजमर्रा जिंदगी में जिस तरह की परेशानियां हो रही थी उसकी बात कर रहे थे वो। तो वो जो बात कर रहे थे वो सचमुच में लोगों के हित की बात कर रहे थे, वो राजनीति नहीं कर रहे थे वो। और राजनीति भी यदि कर रहे थे तो ऐसी राजनीति की जानी चाहिए। सवाल यह है कि इस तरह की बात करके ये भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये इस तरह की बात करते हुए निश्चित तौर पर राघव चड्ढा का एक अलग चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। एक कैनवास में उभरता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। यंग लड़का, ईमानदारी से काम करता हुआ, ईमानदारी से उन लोगों को कनेक्ट करता हुआ जिन लोगों की परेशानी सामने दिखाई दे रहा हो, चाहे वो गिग वर्कर्स हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करने की बात हो कि 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज आपसे ले लिया जाता है, या फिर एरोप्लेन पर बैठने से पहले 4 घंटे आप वेट कर रहे हैं, लेट हो रहा है तो उसके वो सारी चीजें वो कर रहे थे। वो निश्चित तौर पे ये बात खटक रही थी आम आदमी पार्टी के अंदर। नहीं, उनका चेहरा बन रहा वो था, सब ठीक है, उससे एक परेशानी मिनट, पैदा हो रही थी। संजीव जी, वो सब तो ठीक है। देखिए, राघव चड्ढा ने सही लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, ये तो मैं भी मानती हूँ। कैन वी जस्ट पुट दैट ग्राफिक आउट on all the issues that Raghav Chadha actually raised in the Rajya Sabha? That will be helpful for our viewers as well, just to my producers. तो संजीव जी, वो तो मैं बिल्कुल बात मान रही हूँ कि उन्होंने पैटर्निटी लीव पे बात की है, उन्होंने एयरपोर्ट पे अफोर्डेबल खाने के बारे में बात की है, जॉइंट टैक्स फाइलिंग की बात की है। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट ही हैज रेज्ड इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बट ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप एक पार्टी में रह के अपने ही धुन पे चले जा रहे हैं। आपके टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। चलिए, आप नहीं है, आप आए, यू हैव गॉन देयर टू लंदन फॉर एन आई ऑपरेशन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू कांट इवन ट्वीट, यू कांट इवन गिव अ साउंड बाइट when they are finally cleared by the court and the court says there was no scam. Again, you keep completely quiet. The entire opposition along with your party decides that you are going to sign on an impeachment motion against the chief election commissioner. What do? You refuse to sign it. So if you have to be within a party, you have to play by the rules also, na? ये तो बड़ा क्लियर है कि आपको पार्टी में अब इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन में तो ये स्थिति बनी नहीं होगी। किसी भी राजनेता के लिए एक दिन में ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती है कि अचानक रात में डिसीजन लिया गया और सुबह में लेटर भेज दिया गया। ऐसा नहीं था। इसकी भूमिका बहुत दिनों पहले से चलती चली आ रही थी। राघव ने भी जो रास्ते अख्तियार किए थे, निश्चित तौर पे वो पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। जिस तरह से पार्टी के और नेता, जिस तरह से पार्टी के और लोग मुखर होकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश के प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से हमलावर थे, राघव चड्ढा को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन सवाल यह है कि यदि राघव चड्ढा आवाज नहीं उस तरह से उठा रहे थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो कॉम्प्रोमाइज थे? आज कल भारतीय जनता पार्टी में वो चले जाएंगे, ये तो और गलत मैसेज जाएगा ना। राघव चड्ढा काम करने वाले आदमी हैं। निश्चित तौर पे यदि पार्टी में किसी बात को लेकर के उनको अनमन थी या किसी तरह की बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी इसमें बीच में कूद जाती है और भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन के जैसे भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में कूद जाती है, तब ये बात समझ में आती है, या तब लोगों को ये बात समझ में आता है कि आखिर ये मोहब्बत इतना क्यों अचानक। जो व्यक्ति सरकार के विरोध में बात कर रहा था, सरकार से लगातार बात कर रहा था, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि ये हमारे झोले में एक और सांसद है। वो संभव है कि दोनों एक बार में उधर जाएं, या राघव चड्ढा किस तरह की राजनीति करते हैं वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिससे आपने लड़के अपना वजूद तैयार किया हो, उसके कम से कम हिस्से में या उसके साथ कम से कम कदम ताल मिलाते हुए यदि आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी किरकिरी तो होगी। So the Punjab election is next year and I don't think that he has any Raghav Chadha has such a massive ground support in Punjab that the BJP would want him ahead of that. But Neoma Gupta, the Aam Aadmi Party to today is saying khul ke on mics that Raghav Chadha is headed to Prime Minister Modi's team. They can say what they want. Nobody, because they rely only on speculation and rumors. As I've seen, is Mr. Parvinder their official spokesperson or a proxy person? Mr. Parvinder is not their official spokesperson. He's a proxy spokesperson. As I told you, the Aam Aadmi Party has refused to send a guest. Okay. So he's a proxy. Okay, just to tell you, see, Aam Aadmi Party, the true nature of their leaders, the parity of themselves,
what they've sadly become. We'll have to actually wait and watch. Silencing Raghav. We saw what happened in the case of Swati Maliwal. Shreya, I remember you highlighted a lot of points during that time. And as we speak, they're undoubtedly preparing a nice campaigning to discredit him or anybody else and then they'll say they're hand in glove with the BJP or something like that, because they'll never self-reflect. As the previous person was talking about, he did bring up issues of relevance, and those were anti-government. So to suddenly say that BJP is going totally soft on men, why don't you think about the way Mr. Kejriwal discards people? I'd named a few people. There was no defense by your proxy spokesperson on what happened in the Annazar, what happened in Prashant Bhushan's case. So the actual real opportunist over here is Mr. Kejriwal. He's the one who's doing the top-down actions, because it seems to be like just a power-hungry center over there. And obviously anybody who's having independent thinking perhaps is not of relevance in their political party. ठीक है, परविंदर जी, लास्ट वर्ड टू यू. अब आप लोग तो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाला है. राघव चड्ढा खुद कुछ नहीं बोल रहे. अभी उनके पास, जैसे मैंने बोला, 2 साल का टर्म बचा हुआ है. पॉइंट इज की व्हाई डज द पार्टी नॉट सस्पेंड मिस्टर राघव चड्ढा? हटा दीजिए ना, इतनी प्रॉब्लम है अगर आपको उनसे. हटा क्यों नहीं रहे हैं उनको? और ऐसा तो है नहीं कि वो पहले इंसान है जो आपकी पार्टी छोड़ के जाएंगे. अगर जाएंगे तो आपकी पार्टी में तो लंबी लिस्ट है. नहीं, बिल्कुल है. देखिए मैं आपको बताऊं, राघव चड्ढा की कोई ऐसी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि जो उन्होंने करी हो, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, इज्जत दी, प्यार दिया. उसके बाद उन्होंने अगर कोई साठगांठ करी है अपने आने वाले फ्यूचर को देख के, अपॉर्चुनिटी को देख के, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने की, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है. यहाँ उनकी पहले ही डील हो चुकी है कि इसलिए वो इस तरह से हर चीज को इनकार कर रहे थे, चाहे इम्पीचमेंट मोशन के ऊपर साइन. परविंदर जी, अगर आम आदमी पार्टी को पता, 1 मिनट न्योमा, परविंदर जी, अगर आम आदमी पार्टी को पता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के साथ डील कर ली, इसलिए ही वाज गोइंग सॉफ्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, तो आप हटा दीजिए ना पार्टी से. क्यों नहीं हटाया? हाँ परविंदर जी, एंड देन नहीं, अगर किसी व्यक्ति का मन बन जाता, देखो 10 सेकंड्स, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं पे भी अपनी लीडरशिप नहीं है. वो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम आदमी के लोग हों, चाहे विपक्षी लोग हैं, उनके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाती है. चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है. कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी, अभी फुल्का जी को लेके गए हैं. तो पंजाब के लिए इनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है जो पंजाब के अंदर जाए. लोग पत्थर मारते हैं वहां पे. अब ये आम आदमी से लोग चुरा रहे हैं, कांग्रेस से लोग चुरा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में फिर भी इनको जगह नहीं मिलेगी. लेकिन अगर चाहे राघव चड्ढा को ले जाएं, चाहे किसी और को ले जाएं, चाहे फुल्का जी को ले जाएं, ओके, लेकिन आपके पास लीडरशिप नहीं है. ठीक है न्योमा, वेरी क्विकली वी रैप द I'll make it very quick. Today the gag order on him, it just shows specifically that Aam Aadmi Party has silenced a member of parliament who's still an active member of the house. He can continue to attend session, but he will be a mute spectator and not contribute. This is how this party thinks. They think they're doing any wise decision. If they cared so much for the country, they would replace him in total instead of just saying you will not speak in the parliament. So please rethink of how you self-reflect and what steps you should take. If you were so concerned about his action and your internal house is falling, go talk to him and figure your stuff out instead of making an active member silent. This is what the taxpayers are paying for. Okay, we'll leave it there for the moment. Thank you very much, Nyoma Gupta, for joining us. Sanjeev ji, dhanyawad. Parvinder ji, thank you very much for joining us.